MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। Toronto, are you ready? Junoon Reloaded 2025. This is Ali Azmat. This is Salman Ahmed from Junoon. Moshaik and Shiraz Hussain in association with Realink Law and Watan Kebab present the biggest South Asian Sufi band. Ali Azmat, Salman Ahmed, Brian O'Connell. Is coming to Toronto on the 11th of May at the Casino Theatre. Tickets starting only at $25. The tickets are at ticketmaster.ca. For more info and sponsorship, call Moshaik, Shiraz Hussain. Please go come and check it out because it's going to be a night of music. See you there. This news bulletin is brought to you by Badshah Grill. हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905-625-6673. यहाँ मिले मजे की कहानी, आइए खाएं दिल भर के। लोहारी फ्लेम है सबके लिए, जायकों का घर, खुशबू का नाम। लोहारी फ्लेम लाजवाब नाम। लोहारी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। Come to Lahori Flame and enjoy halwa puri, nehari pie, लच्छा पराठा, आलू पराठा और मूली पराठा। और सिर्फ ये नहीं, enjoy our family barbecue platter, लाहौरी चाय, कश्मीरी चाय, चिकन कढ़ाई, मटन कोन्ना और हमारे सबसे मशहूर गोलगप्पे। Visit us at 4700 Ridgeway Drive, Unit 68, Mississauga. Call 905-607-0202. लाहौरी फ्लेम, जहाँ जायके जीते दिल। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 थी। ज़लज़ले के झटके इस्लामाबाद, लाहौर, हरीपुर, सवात, मालाकंड, एबटाबाद, चारसद्दा, सवाबी, चैक्सला, हसनाबाद में भी महसूस किए गए। वज़ीर-ए-आज़म का हैवी मशीनरी और गाड़ियाँ तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलाज का दौरा। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर तोर्चिन ने फैक्ट्री आमद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक बस में सफ़र किया और फैक्ट्री के मुख्तलिफ हिस्से देखे। उन्हें बेलाज फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर एर्दोगान ने वज़ीर आला मरियम नवाज का खैर मकदम करते हुए डिप्लोमेसी फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने मरियम नवाज शरीफ से साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। एस्टैब्लिशमेंट से डील का इल्म नहीं, आज़म सवाती ने अपने तौर पर बात की। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में इस्ताद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट डील की बात आज़म सवाती अपने तौर पर कह रहे हैं। जब तक बानी PTI इमरान खान से बात नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं कह सकते।
آزادی مارچ کے سرتاج گل کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. وکیل سردار مصروف نے کہا کہ ایف آئی آر کے مطابق وقوع عوامی جگہ پر ہوا جبکہ شکایت کنندہ پولیس ہے. کسی بھی طرح کے کوئی شواہد چالان کے ساتھ پیش نہیں کیے گئے. جج نے استفسار کیا کہ آپ نے رول آف کنسسٹنسی کی بات کی ہے جس کی ججمنٹ کہاں ہے. بعد ازاں عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر سرتاج گل کی بریت کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا. چین کا جوابی وار امریکی مصنوعات پر 125% ٹیرف عائد کر دیا. وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ نے چین پر 20% لیوی کی مد میں اضافہ کیا. چین نے امریکہ کو عالمی اقتصادی نظام کے لیے خطرہ قرار دے دیا. چینی وزارت خارجہ نے دو ٹوک اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عالمی تجارتی قوانین پامال نہیں ہونے دیں گے. امریکی دھمکیوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں، بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. واشنگٹن تجارتی جنگ چاہتا ہے تو آخر تک لڑیں گے. ایٹمی پروگرام تنازع ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات آج ہوں گے. دونوں فریق عمانی وزیر خارجہ سے ملاقات کے بعد مذاکرات کا آغاز کریں گے. عباس عراقچی ایران اور اسٹیو امریکی وفد کی قیادت کریں گے. عمانی وزیر خارجہ پیغام رسانی کی ذمہ داری نبھائیں گے. مذاکرات سے ایران کی ترجیحات واضح ہوں گی. رحیم یار خان صوبائی حکومت پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب دھیرانی پروگرام کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا. رحیم یار خان وزیر اعلیٰ پنجاب دھیرانی پروگرام کے تحت 57 دلہنیں پیا گھر سدھار گئی. صوبائی وزیر سماجی بہبود و بیت المال سہیل شوکت بٹ کی افتتاحی تقریب میں شرکت. صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر نے نوبیاحتہ جوڑوں کو فردن مبارکباد دی. نوبیاحتہ جوڑوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 1 لاکھ سلامی کے کارڈز دیے گئے. ننکانہ صاحب ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کی زیر صدارت پرائیویٹ اسکولوں کی رجسٹریشن اور فیسز کے تعین بارے اہم اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو، اسسٹنٹ کمشنر ڈویژنل انفورسمنٹ آفیسر سی او تعلیم سمیت اسکول ایسوسی ایشن کے نمائندوں کی شرکت. ملک بھر کی طرح شاہکوٹ میں بھی فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت اور مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی جس میں شہریوں، اسکول کے طلباء اور مکاتب فکر کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ننکانہ صاحب آر پی او شیخ پورہ رینج اظہر اسماعیل کا ننکانہ کا دورہ. سکھ برادری کے بیساکھی فیسٹیول کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ. ننکانہ صاحب ڈی پی او ننکانہ نے آر پی او کو سیکیورٹی ڈیوٹی کے متعلق بریفنگ دی. آر پی او نے ڈی پی او ننکانہ کے ہمراہ سکھ رہنماؤں سے ملاقات کی. سکھ رہنماؤں نے فل پروف سیکیورٹی انتظامات پر آر پی او کا شکریہ ادا کیا. This bulletin is brought to you by Al Johna Market, Mississauga. Sale! Oh, what's on sale? Everything. The Johara Market is the best market ever. قصرتوا يعني الشاب ما قصر بالمرة ما شاء الله كلش تمام حتى اللبن عندكم شيء والله amazing. This news bulletin is brought to you by Noora Cakes and Sweets. Come to Noora Cakes. Our taste is the best in Mississauga. Noora Cake is the best. We're in Richard Plaza in Noora Cake. If you haven't tried that, you're missing out on half of your life. Yeah, you guys should come try the Despacito. It's the best here. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے. سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کی شدید جھٹکے. زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 تھی. زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد، لاہور، ہری پور، سوات، مالاکنڈ، ایبٹ آباد، 410، سوابی، ٹیکسلا، حسن آباد میں بھی محسوس کیے گئے. اس کے علاوہ اٹک، سانگلہ ہل، خانپور، ہزارہ، کندیاں، چشمہ، پپلا اور دیگر علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. لوگ خوف و ہراس کے باعث گھروں سے باہر نکل آئے. پاکستان قبائل موومنٹ پارٹی اور تحریک سلیمان خیل کے زیر اہتمام اسلام آباد پریس کلب میں سیمینار کا انعقاد ہوا. اس سیمینار کی قیادت پاکستان قبائل موومنٹ کے وائس چیئرمین الحاج عجب خان اور تحریک سلیمان خیل کے سربراہ سردار ناصر خان نے کی. سیمینار میں ضلعی اور صوبائی صدور کے علاوہ کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ہمارے ساتھ اس ٹائم پریس کلب اسلام آباد میں موجود ہے ضیاء الحق صاحب، جو حالیہ الیکشن میں ایم این اے کے ٹکٹ پہ پاکستان قبائل موومنٹ کی طرف سے الیکشن لڑ چکے ہیں. آج کے اس پریس کانفرنس اور سیمینار سے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا مطالبہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا آج کا جو
प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस क्लब में आने का मकसद एक ही है कि हमारे आबाई इलाके में जो हमारे वहाँ के रहशी हैं या मुकामी लोग हैं उनके साथ जो ज़्यादती हुई है उनके अजाले के लिए हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे इलाके के जितने भी हमायदीन हैं, मलक हैं, सरदार हैं, जो भी आए हैं, तो हमने वो आवाज़ यहाँ पे वहाँ तक इदारों तक, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, वज़ीर आज़म साहब तक पहुँचानी है कि हमारे साथ वहाँ पे गवर्नर या जो मार्शल लॉ लगा हुआ है वो एक कौम की तरफ से लगा हुआ है। उसके लिए क्योंकि अगर वो इलाका हमारा है या हम वहाँ इलाके के रहशी हैं तो हमें भी उनके बराबर हुकूक दिए जाएँ, ना ये कि मंदोखेल को सिर्फ एक तरफ करके और हमारे जो हक है उस पर डाका डाला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अली और सुलेमान का जो सेमिनार इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब में मुनक्किद हो रहा है और हो चुका है, इसका मकसद अपने आबाई इलाके पर तवज्जो देने थी। अपने आबाई इलाके के जो मसाइल हैं, जिस तरह के हमारे स्कूल, रोड, नादरका और मुख्तलिफ हमारे और भी जो दुश्मनियाँ, ज़मीनी तनाज़ात हैं, हमारे जो वहाँ के मलक साहिबान हैं वो बात करने के लिए, बैठने के लिए तैयार है, लेकिन हमें कोई रिस्पांस ही नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ हमने जाफ़र मंदोखेल को कई बार फ़ोन किए, कई बार मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमें टाइम नहीं दे रहे हैं। इसका मकसद ये कि वो बलूचिस्तान के गवर्नर नहीं है, वो मंदोखेल का गवर्नर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके चैनल की तवज्जो से कि जाफ़र साहब जो है, जाफ़र मंदोखेल साहब, हम आपकी कदर करते हैं, हम आपको तस्लीम करते हैं कि आप हमारे बलूचिस्तान के गवर्नर हैं। हम आपकी कायदाना सलाहियतों की तारीफ़ करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप हमें टाइम देंगे, हमारे जो सुलेमान खेल के मसाइल हैं इंशाल्लाह वल अज़ीज़ उसमें हल करने में आप हमारी मदद करेंगे। हाँ जी, शुक्रिया, मेहरबानी मेरे भाई। हम आए हैं, मेरा नाम दाऊद पठान शेरखानी है। मैं कराची साबका यूसी चेयरमैन हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरा ताल्लुक है। चूँकि मैं वहाँ से आया हूँ, मैं मेहमान की हैसियत से, यहाँ सरदार नासिर खान जो कायदे तहरीक है, उनके ज़ेर क़यादत एक अजीम शान प्रोग्राम हुआ, सेमिनार हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसमें जो गुफ्तगू थी वो आपने सुना। मेन जो मकसद है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इस मजमे को बनाने की क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत ये कि सुलेमान खेल एक कौम है, वो आपको भी पता है, पूरे इदारों को पता है कि ये एक बहुत बड़ी कौम है और ये पाकिस्तान के सरहदात जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर क़याम पजीर है और ये ब्रिटिश यानी अंग्रेज के दौर से क़याम पजीर है। ये आज के नहीं आए हुए, अंग्रेज जब पाकिस्तान एक क़याम है, पाकिस्तान से कबल ये लोग वहाँ बाद है। तो मुहिब वतन है, अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े हैं और अपने बॉर्डर की हिफाजत करते हैं बिला मुआवजा बिला नागा। तो वहाँ बदकिस्मती के साथ हमारे उन एरियो में जो एरिया है वहाँ एक कौम रहती है जिनका नाम है मंदोखेल। तो मंदोखेल की कोई तारीख है भी नहीं, मगर चूंकि वह आबाद है, कब से आबाद है यह मैं नहीं पता है। उनके साथ हमारा ज़मीनों पे तनाज़ा है, ज़मीनों पे ये तनाज़ा है। ये एक जालिम तालीम का लिबादा ओढ़ कर वो लोग, चूंकि तालीम याफ्ता लोग हैं, इदारों में वो है, जजेस वो है, एसपी वो है, डीसी वो है, तो वो हमारे जो लोग हैं उनको ज़हनी टार्चर करते हैं। उनके जो एनआईसीआई है, लोकल है, उनको ब्लॉक करते हैं और जानबूझ के करते हैं। तो उस पर कई झगड़े हुए हैं, इन पे दोनों कौमों के लोग मरे हैं, सुलेमान खेल के भी मरे हैं, मंदोखेल के भी मरे हैं। अब हमारी अफवाज पाकिस्तान से, आपके चैनल से आज इसके ये प्रेस रिलीज है, हमारा ये पैगाम है, मुतालबा है, अपील है कि खुदारा सुलेमान खेल मुहिब वतन कौम है और इस मुल्क के वफादार है। और दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तमाम सूबे में, चारों सूबों में और पाकिस्तान के हर जिले में सुलेमान खेल कारोबारी लोग हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत बड़े बड़े कारोबार करते हैं। और ये भी मैं फख्र से कहता हूँ कि टैक्स फाइलर है, टैक्स देते हैं, हुकूमत की मईशत को मजबूत करने में इनका बड़ा रोल है। तो हमारा ये मुतालबा है कि खुदारा आर्मी चीफ से, आर्मी से हमारा मुतालबा है कि खुदारा ये जो जालिम है इनको जुल्म करने से रोका जाए। तो स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।